Revision of Unit 2 Solutions. First topic is methods of expressing to concentration. The concentration of a solute is the amount of solute dissolved in a given quantity of solvent or solution. The quantity of solvent or solution can be expressed in the terms of volume or in terms of mass or molar mass. Thus, there are several ways of expressing the concentration of a solution. तो concentration को express करने के कई methods हैं, जिसमें first क्या है, molarity, capital M. Definition is moles of solute present in 1 liter solution. इसका unit क्या है, mole per liter. Mathematically, capital M molarity is equal to number of moles of solute upon volume of solution in liter. Next, molality, it is represented by small m. इसकी डेफिनेशन क्या थी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. इट्स यूनिट इज मोल पर kg. मैथमेटिकली वी कैन राइट मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. Next, mole fraction. The mole fraction of a component substance A in a solution is defined as the moles of component substance divided by the total moles of solution. मतलब जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल अपॉन टोटल मोल. It is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all components. XA is equal to moles of substance A upon total moles of solution. Similarly, XB is equal to moles of substance B upon total moles of solution. यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि sum of the mole fraction is always equal to 1. Next क्या है, mass percent. The mass percent of a component A in solution is defined as mass percent of A is equal to mass of A upon total mass into 100. Mass percent क्या होता है, mass of solute dissolved in 100 gram of its solution. Similarly, mass percent of B is equal to mass of B upon total mass into 100. Part per million ppm. It is defined as the parts of given component in 1 million parts of solution. Mathematically, ppm is equal to mass of solute upon mass of solution into 10 to the power 6 means 10 lakh. Henry's law. Henry law क्या था, at constant temperature the solubility of gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी. सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मोल फ्रैक्शन x. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन ए सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस और पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू kh into mole fraction of the gas in solution. Here kh is constant which is called Henry's law constant and its unit is same as pressure. Next topic is Raoult's law. Raoult's law, at constant temperature vapor pressure of solution containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of solvent. तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए. एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट क्या है, वॉलेटाइल है. सॉल्यूट क्या है, नॉन वॉलेटाइल है. एंड पी नॉट ए इज कांस्टेंट विच इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए. यहाँ भी ये ध्यान देने वाली बात है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. इसी स्टेटमेंट को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट.
तो पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन, ये तो क्या है, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट ए होल टर्म इज कॉल्ड रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कौन सा, नॉन वॉलेटाइल। एक केस ये भी था राउल्स लॉ इन केस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वॉलेटाइल लिक्विड्स। अगर सॉल्यूशन में दोनों लिक्विड वॉलेटाइल हों तब क्या होगा, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वॉलेटाइल लिक्विड्स इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी। तो मैथमेटिकली पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, एंड पी बी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। और इसके लिए एक अपन ने पहले कर्व बनाया था, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन में, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस विच ओबे राउल्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल एंड डू नॉट ओबेज राउल्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल। जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को सेटिस्फाई करेगा वो आइडियल हो जाएगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो नॉन आइडियल हो जाएगा। अब नॉन आइडियल में क्या होते हैं, दो केस होते हैं, एक तो पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। फर्स्ट कर्व जो बन रहा है वो पॉजिटिव डेविएशन का है और सेकंड कौन सा है, जो बी है वो नेगेटिव डेविएशन का है। अब फर्स्ट जो ए है इसमें क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज़ ग्रेटर देन वेपर प्रेशर एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। मतलब राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर, ये डॉटेड लाइन है, उससे ज़्यादा है। तो जब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो देयर इज ए सर्टेन कंपोजिशन एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम मैक्सिमम एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकम मिनिमम। सच मिक्सचर इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। इसका पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है जैसे एन हेक्सेन प्लस एथेनॉल। सेकेंड कौन सा है, नेगेटिव डेविएशन। इसमें क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ए एंड बी is less than vapor pressure as expected according to Raoult's law. Then there is a certain composition at which vapor pressure of solution become minimum and boiling point become maximum. Such mixture is called maximum boiling azeotrope. Vapor pressure और boiling point एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके बाद है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। नेगेटिव डेविएशन का भी एग्जाम्पल मैंने पहले बताया था, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। नाउ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये क्या होती है, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ सब्सटेंस, डू नॉट डिपेंड नेचर ऑफ सब्सटेंस। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या थी, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या हो गया, पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट ए, ये तो क्या हो गया, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो वो किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर। और पी नॉट वन माइनस पी वन अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी को क्या लिख सकते हैं अपन, W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कौन सा, नॉन वॉलेटाइल M2, और M1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो बाय दिस फार्मूला वी कैन फाइंड मोलर मास ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट M2। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बाई ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और के बी क्या है, कांस्टेंट
which is called molar elevation constant. Unit of molar elevation constant is Kelvin kilogram per mole and small m क्या है, मोलैलिटी. इस फॉर्मूले से भी अपन मोलर मास अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का फाइंड कर सकते हैं. तो वो क्या होगा, m2 इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 इंटू KB अपॉन डेल्टा TB इंटू W1. ये एक्सप्रेशन और डेरिवेशन मैंने पहले आपको बताया है. m2 क्या है, मोलर मास ऑफ अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. W2 वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम. KB मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. और W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. और ये एक कर्व इसमें अपन ने पहले भी बनाया था, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर. तो यहाँ देख सकते हो आप T0B, ये तो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. और TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. तो दोनों में जो डिफरेंस है उसे अपन क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बाई ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. ये दोनों प्रॉपर्टी सेम है, उसमें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में हो रहा है और इसमें फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो रहा है. तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M. यहाँ डेल्टा TB नहीं आएगा, डेल्टा TB की जगह डेल्टा TF लिखना है अपने को, और KB की जगह क्या लिखना है, KF. KF क्या हो जाएगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. तो M2 क्या हो जाएगा, KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1. M2 क्या हो गया, वही मोलर मास ऑफ अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. KF क्या होगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम. डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इंटू W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम. इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोसिस तो एक फिनोमिना है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. ऑस्मोसिस क्या है, पासेज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल इनटू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, रिप्रेजेंटेड बाय पाई. एक्सेस प्रेशर अप्लाई ऑन सॉल्यूशन साइड टू जस्ट प्रिवेंट solvent particle into solution through semi permeable membrane. तो पाई इज इक्वल टू CRT. पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर. C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर. R इज गैस कांस्टेंट एंड T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन. और मोलर मास ऑफ अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट M2 इज इक्वल टू W2 इंटू RT अपॉन पाई V. M2 मोलर मास हो गया, W2 वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ग्राम. R क्या है, गैस कांस्टेंट 0.082 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन. T क्या है, टेम्परेचर. वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर में, और पाई किस में आएगा, ATM में. इसके बाद है वेंटा फैक्टर. वेंटा फैक्टर क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, या ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर अपन बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन. क्योंकि देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, और मोलर मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के. वेंटा फैक्टर में मैंने आपको बताया था कि अगर I इज इक्वल टू, इफ I इज इक्वल टू 1, इट मीन्स नाइदर बी डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन. ना तो एसोसिएशन हो रहा है और ना डिसोसिएशन हो रहा है.
मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन भी सेम वही है और बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन भी सेम है। ये किसके केस में होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में, जैसे शुगर, ग्लूकोज। तो उन सब के केसेस में क्या होगा? I इज इक्वल टू 1। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएंगे बिफोर डिसोसिएशन से, तो I इज इक्वल टू क्या होगा? ग्रेटर देन 1। अब इन केस ऑफ पॉलीमराइजेशन, जैसे ट्राइमराइजेशन ऑफ इथाइन टू फॉर्म बेंजीन, तो 3 पार्टिकल्स ऑफ इथाइन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 1 पार्टिकल ऑफ बेंजीन। तो आफ्टर कितना हो गया? 1, बिफोर कितने हो गए थे? 3, तो क्या हो जाएगा? 1/3। तो एसोसिएशन के केस में क्या हो जाएगा? क्वांटा फैक्टर हमेशा लेस देन 1। तो ये ध्यान रखना, I इज इक्वल टू 1, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। I ग्रेटर देन 1 डिसोसिएशन टेक्स प्लेस and I less than 1 association takes place. Tomorrow we will discuss next chapter, electrochemistry. Thanks.